Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Pathais Academy. Here we are going to see what are the questions of governance and what is the syllabus of governance. This belongs to UPSC paper 2. You must be knowing about Indian polity, justice, IR and governance. These all are part of paper 2. So obviously governance is always associated with the government. So government is basically machinery and governance is the behavior of governmental machinery. So basically I'm going to discuss the syllabus of this paper, this governance paper, and how this topic is associated with paper 4 also, that is ethics. So obviously ethics belongs to behavior of the bureaucrat, okay. So his behavior, the behavior of governmental machinery is governance, and at the same time what and how he is behaving is a part of ethics, okay. So that means a person, a common man, when he becomes a bureaucrat, then his behavior, his government related behavior or behavior in the position of any officer, what is that? That is his governance, and obviously he is a part of governmental machinery. So we have national government, then state government, then we have district administration and local self government, okay. So that is Panchayati Raj institutions and urban local bodies, right? So friends, definitely the governance part belongs to governmental behavior or behavior in the position of government service or government officer, okay. At the same time there is another one, that is ethical behavior, okay, in his personal capacity, at the same time official capacity. सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं. देयर इज़ अ इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स, स्पेशली बिटवीन पेपर 2 एंड पेपर 4, ओके. सो जब आप सिलेबस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आपस में एक कनेक्शन मिलेगा. सो इस डिस्कशन में मैं बेसिकली इस कनेक्शन के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is important? The structure of government. So national government में आप पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि देश काम कैसे करता है, how it works, how it is run by the system, and that consists of national government, state government. National government consists of executive part. So executive means prime minister, council of ministers, then at the same time legislature, that is Lok Sabha, Rajya Sabha and president. And after that there is a state government, and then at the bottom level there is a local self government, okay. So ये तीन स्ट्रक्चर हैं. एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं. यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में. सो डिस्ट्रिक्ट में होंगे भी तो वो इस लेवल से आते हैं, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गए, या फिर आप बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ में डायरेक्ट इलेक्शन में कोई आएगा तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोग ही आते हैं, राइट. सो दैट मीन्स ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं. सो जब भी आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो एक ब्यूरोक्रेट अपनी कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऑफिसर बनता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, अलग अलग पोस्ट पर आप जाते हैं. सो आप ब्यूरोक्रेट हैं, राइट. आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं बिकॉज आपको टिल 60 ईयर्स ऑफ द एज आपको जॉब करनी है, टिल द रिटायरमेंट. सो ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट. बेसिकली ब्यूरोक्रेट टर्म हम इसके बारे में बात करेंगे. वैसे आया ये फ्रांस से है. ब्यूरो मीन्स मेज, और उस पर बैठकर काम करने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था. क्रेट और ब्यूरो से मेज, और क्रेट उस पर बैठकर काम करने वाले लोग. सो इस तरह से ब्यूरोक्रेट टर्म आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंटल मशीनरी इज गवर्नेंस. सो इनका बिहेवियर उस कैपेसिटी में कैसा है वो गवर्नेंस है, ओके. एंड फिर इनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनका बिहेवियर कैसा है, दैट इज एथिक्स. लेकिन आपकी पर्सनल कैपेसिटी का बिहेवियर इज ऑलवेज अफेक्टिंग योर ऑफिशियल कैपेसिटी. क्लियर है? आपके अंदर किस तरह का थॉट पैटर्न है,
किस तरह से आप सोचते हैं, मे बी किसी फिलोसोफर ने आपको अफेक्ट डाला होगा, मे बी किसी बुक से आप मोटिवेट हुए होंगे, मे बी गांधी जी के थॉट से आप अफेक्ट हुए होंगे या मोटिवेटेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। फिर आपके पीछे कोई ना कोई फैमिली वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, वो भी आपको सिखाती हैं कि आपको बिहेव कैसे करना है। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छा बोलते हैं, दैट मीन्स फैमिली से आपको गिफ्टेड है, या नेचुरली आप वैसे हैं, बहुत रूड बात करते हैं, बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, बहुत चिल्ला कर बात करते हैं, दैट मीन्स अगेन वो फैमिली से आपने लर्न किया है या बाय बर्थ चीज़ें आपको उस तरह के ट्रेड्स में मिली होंगी। इट मीन्स योर पर्सनल ट्रेड्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर ऑफिशियल ट्रेड्स, राइट। सो ऑफिशियल कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, इसीलिए ये पूरा पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है, एथिक्स एंड एटीट्यूड। और ये टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। जब आप देखेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने आपके पर्सनल ट्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू डील विद द पब्लिक। जैसे एक टॉपिक है कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस इन द सोसाइटी, ठीक है ना। अब इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, क्यों ये पूछा गया? बिकॉज सोसाइटी में पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो पॉवर्टी का वहाँ एक टेक्निकल मीनिंग आपको मिलता है, ओके। फिर वही पॉवर्टी है जिसे इंडियन सोसाइटी और जस्टिस में आप पढ़ते हैं। सो जस्टिस पेपर 2 का टॉपिक है और सोसाइटी पेपर 1 का टॉपिक है। सो एक पॉवर्टी वाला टॉपिक सभी जगह कनेक्टेड है। और एथिक्स में आप आकर आपका बिहेवियर पुअर पीपल के लिए कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी हम देखें जैसे मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर एक कंपेशन चाहिए, है ना, एक कंपेशन चाहिए। जो कमज़ोर लोग हैं, जो वल्नरेबल स्टेट में हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, उनके लिए आपके पास क्या सिंपैथी और एम्पैथी है? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट का बिहेवियर, ऑफिशियल बिहेवियर कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नेंस में। दैट मीन्स पेपर 2 में आप उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, और पेपर 4 में क्या पढ़ रहे हैं कि कंपेशन है या नहीं उसके अंदर, क्लियर है, एथिक्स उसके अंदर है या नहीं, या फिर उसके अंदर सिंपैथी या एम्पैथी है या नहीं, ये आप पढ़ रहे हैं पेपर 4 में। सो वो वाला बिहेवियर यहाँ कनेक्ट होता है। अब इंडियन पॉलिटी में आप क्या पढ़ते हैं? प्रियम्बल में आपने पढ़ा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस मीन्स व्हाट? आई मीन आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, दैट इज़ योर सोशल जस्टिस। वो मिल जाए तो वही सोशल जस्टिस है, राइट। सबसे पहले आपको फूड चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, फिर तन पर कपड़े चाहिए, एंड देन फिर घर चाहिए। मान लो घर पहले मिल गया और भोजन नहीं है, सो नो, इसका सीक्वेंस है रोटी कपड़ा मकान, हम कहते हैं ना, बहुत पहले एक मूवी आई थी मनोज कुमार की। सो आप देखोगे रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटी, वहाँ से कनेक्ट करके जब आप पॉलिटी में ये टॉपिक पढ़ते हो, इस टॉपिक को अब हमें क्या देखना है कि ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस के थ्रू, आई मीन अपने गवर्नमेंटल बिहेवियर के थ्रू, गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू, एक गरीब आदमी को, पुअर पीपल को, जो नीडी लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, हैव नॉट्स हैं, उन तक वो कैसे पहुंचाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। अब इसी गवर्नमेंट प्रोग्राम को आप कहाँ पढ़ते हैं? इसी गवर्नमेंट प्रोग्राम को आप जस्टिस में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लियर है। अब ये इन्हीं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का डिटेल आप पेपर 3 इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, क्लियर है। सो उनको गवर्नेंस का बेनिफिट, आई मीन गुड गवर्नेंस जब आप कहते हैं, इट मीन्स व्हाट? गुड गवर्नेंस मीन्स गुड बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी, जैसे टाइम पर उनको डिलीवरी मिल जाए। अब गुड गवर्नेंस अभी वहाँ मिसिंग है, मणिपुर में गुड गवर्नेंस मिसिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरीज उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि आप पेपर में अलग लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, पॉलिटिकल आपको कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो तलाश करना है। जैसे कोविड में मान लो कुछ गरीबों तक खाना नहीं पहुंच पाया, या बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। सो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट उतने सीरियसली उनको नहीं देख पाया कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, या दे डोंट हैव फूड, दे डोंट हैव ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, दे डोंट हैव ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब नहीं है तो क्या हमें नहीं दिखा? तो ये मिसिंग क्यों हुआ? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? गवर्नमेंट की जॉब में हम क्यों आए? बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम्स वहाँ तक पहुँचाना है। फिर आप देखोगे हमारा प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो प्रियम्बल हमारा कह रहा है कि सब लोग हमारे लिए एक हैं, आई मीन एवरीबडी इज इक्वल। सो इक्वालिटी की बात हो रही है, फिर फ्रीडम की बात हो रही है, क्लियर है। सो इक्वालिटी फ्रीडम हम कहाँ दे पा रहे हैं?
हमने तो उनको प्रॉमिस किया है। फिर आर्टिकल 38 हमें वेलफेयर की बात करता है, डीपीएसपी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 38 जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। दैट मीन्स ये सब इंटरकनेक्टेड है, देयर इज अ इंटरकनेक्शन अमंग दीज टॉपिक्स। ओके, अब यहाँ से वो फुलफिल कैसे होना है, ये ब्यूरोक्रेट आप यहाँ की चीज़ों को लेकर आइए पॉलिटी में। अब जो हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो राज्यसभा लोकसभा, ये लोग बिल बनाएंगे या प्रोग्राम्स बनाएंगे, पास होगा, देन वो एग्जीक्यूटिव के पास आएगा, दैट मीन्स पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आएगा, वहाँ से फिर वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी कि भाई साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम लॉन्च करना है, देन डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, ब्यूरोक्रेट है, वो उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट करते वक्त हम क्या बोलेंगे कि हमारा गवर्नेंस पुअर है या गवर्नेंस अच्छा है, या गवर्नमेंट से डिलीवरी कैसे हो रही है। सो डिलीवरी वाला पोर्शन आप पेपर 4 में भी पढ़ते हो, क्लियर है। इसी टाइम पर हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप देखोगे गवर्नेंस में भी वो टॉपिक मिलेगा और आपको पेपर 4 में भी वो टॉपिक्स मिलेंगे। बिकॉज पेपर 4 इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पर जो पर्सनल बिहेवियर है वो अकेले आपके इंटरनल थॉट से मैनेज नहीं होता, वो गवर्नमेंट के प्रेशर से भी मैनेज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेशर से, फिर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रेशर, फिर एनजीओ का प्रेशर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रेशर, गवर्नमेंट का प्रेशर, अपोजिशन का प्रेशर, राइट। फिर आप देखोगे प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर, ये सारा प्रेशर आपके बिहेवियर के ऊपर है, तो उनके बारे में भी आप पढ़ते हो यहाँ पर। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो गवर्नेंस का पोर्शन है वो उसका इंटरकनेक्शन आपको दिखाई देगा, क्लियर है। सो पॉलिटी में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 335, एफिशिएंसी टर्म है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल लुकिंग इनटू द रिजर्वेशन। सो आप देखोगे एफिशिएंसी की बात बोली गई, सो एफिशिएंसी का सीधे कनेक्शन आपके गवर्नेंस में है और गवर्नेंस से वो यहाँ पर है। बिकॉज जब हम आउटपुट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, तो वो डिलीवरी किस तरह से हुई है उसके बारे में भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उन चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं आप तक, कैसे उन चीज़ों को इनकलकेट कर पा रहे हैं, सर्विस हम कैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं, राइट। सो उस पूरे कनेक्शन में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, एथिक्स हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे एथिक्स के पेपर में सबसे लास्ट में इन्होंने करप्शन के बारे में लिखा है। दैट मीन्स ये पूरा पेपर, ये पूरा पिलर जो टिका हुआ है करप्शन के ऊपर, ये है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। बिकॉज एथिक्स आपका क्या है, इंटरनल जो भी चीज़ें हैं वो जब आपके आउटपुट के फॉर्म में आती है, गवर्नमेंट कैपेसिटी के फॉर्म में जब आउटपुट आता है, दैट इज़ गवर्नेंस। लेकिन वहीं जब आपके अंदर कोई थॉट जा रहा है, वो एथिकल वैल्यूज़ की बात हम करते हैं, क्लियर है। वैल्यूज़ वो क्या है, वो आपके इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके ब्रेन में जाते हैं, आपके लर्निंग्स में आते हैं। वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, वैल्यूज़ अंदर जाएंगे, सोसाइटल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ आपके अंदर जाएंगे, और जब जो चीज़ बाहर आएगी वो क्या है, आपका एथिकल बिहेवियर है। और वही जब ऑफिशियल कैपेसिटी में मिक्स होकर आए तो गवर्नेंस है, और वो उसमें एथिक्स भी शामिल हो जाए और गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो भी सामने आ जाए, देन इसी को आप गुड गवर्नेंस बोल सकते हो कि उसका बिहेवियर अच्छा था। फिर आप तारीफ़ करते हो, नहीं वो ऑफिसर बहुत अच्छे थे, वो एक जो बूढ़ी माँ आई थी उनके साथ कलेक्टर बैठे हुए थे साथ में ज़मीन में। सो ये पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है कि कलेक्टर साहब ज़मीन में बैठकर बात किए बुजुर्ग महिला से। इट मीन्स क्या हुआ, वो बुजुर्ग महिला आपने क्यों माना, क्योंकि आपको फैमिली वैल्यूज़ में वो चीज़ मिली थी, इसलिए आपने माना शी इज़ ओल्ड लेडी और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपके अंदर फैमिली वैल्यूज़ थे, ठीक है ना। फिर आप कलेक्टर हैं, वो कैपेसिटी आपकी क्या है, गवर्नेंस की कैपेसिटी है कि आप कलेक्टर हैं, और आप नीचे बैठ गए उसके साथ ये बताने के लिए कि हाँ मेरे लिए आप बराबर हैं, मेरे लिए इक्वालिटी है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओबे कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली से भी आपको वैल्यू मिली है। मान लो आप चेयर में ही रहकर बात करते, चेयर में बैठ के ही बात करते और वो महिला ज़मीन पर बैठी होती तो भी आपको कोई डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, बिकॉज आप ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं। बट ऑफिशियल कैपेसिटी दैट डजेंट मीन कि आप नीचे नहीं बैठ सकते। आप बैठ गए तो ज़्यादा तारीफ हो रही है, आप नहीं बैठते तो कोई कुछ बोलता भी नहीं, शायद लोग इतना ही बोलते हैं कि हाँ आप उस बुजुर्ग महिला की बात सुन रहे थे, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी तो आप चेयर लगवा देते, लोग क्रिटिसाइज़ करते। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप नीचे आकर बैठ गए उसके साथ, दैट मीन्स आप इक्वालिटी का बिहेवियर दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि येस मैं आपके दुख दर्द में साथ में हूँ, मैं एम्पैथी और सिंपैथी की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, मैं आपके साथ हूँ कि ठीक है बारिश में आपकी फसल उजड़ गई
तो माता जी आप चिंता मत कीजिए, आपको मुआवजा मिलेगा। आपके जो पशु हैं उनकी डेथ हो गई, गाय बैल की डेथ हो गई, वो हम मुआवजा देंगे। फिर वो घर के लिए रो रही है तो बोले आप चिंता मत कीजिए, घर भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री जो हाउसिंग की स्कीम है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आपका घर बन जाएगा। फिर वो कह रही हैं कि नहीं हमारे जानवर, तो आप चिंता मत कीजिए, बीमा स्कीम है, हम उसके थ्रू आपको पैसा दिलवा देंगे। सो ओवरऑल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो आप चिंता मत कीजिए माता जी, हमारे पास खाद्यान्न योजना है, उसमें आपको हर महीने 10 किलो 20 किलो जो भी अनाज आपको दिया जाएगा। हर स्टेट में अलग अलग स्कीम्स हैं, वो अनाज आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। और वहीं पर कलेक्टर किसी को कहते हैं कि मिस्टर एक्स, जो भी उनके ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, कि आप ध्यान रखिए और इनके मोहल्ले में हर महीने इनके घर पर जाकर चेक करना है आपको। ये क्या हुआ कि आपने अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। क्लियर है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर, जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं, वो एक किसी गरीब महिला के घर जाती हैं, देखती हैं उनके घर में लाइट नहीं है, तो वो उन्होंने भीड़ भाड़ के लाइट का इंतजाम कर दिया। अब उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में तो लिखा नहीं था कि उनके घर में लाइट नहीं हो तो आपको जाके लगाना है। पुलिस तो वैसे भी ये सब काम नहीं करती, वो चाहते तो फ़ोन कर सकते थे पंचायत को या निगम को, कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, कि आप सब देख लीजिए उनके घर में लाइट नहीं है। मे भी शायद कोई और करता, लेकिन आप खड़े होके उस काम को करवा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला पेपर कनेक्ट होता है आपका। क्लियर है। ऑफिशियल कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, दैट इज योर गवर्नेंस, ओके, पेपर 2। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर आपके अंदर, क्योंकि आप भी इंसान हैं, सामान्य मनुष्य हैं, राइट, यू आर अ कॉमन मैन, और कॉमन मैन फिर ऑफिसर बनता है। सो आपके अंदर भी कोई बेटी है, आपके अंदर भी कोई माँ है, आपके अंदर भी बेटा है, आपके अंदर भी कोई भाई है। सो उस कैपेसिटी में जब आप, क्योंकि वो पीछे की वैल्यूज आपकी चली आ रही हैं, राइट, कुछ में वैल्यूज दिखती हैं, कुछ में नहीं दिखती, कुछ समय के साथ आती हैं, कुछ में होती भी नहीं, ये भी बात है, राइट। अब इसी चीज को हम और ज्यादा कहां से लेकर आएंगे? गांधीयन फिलॉसफी से, अब्दुल कलाम साहब की किताब से, विवेकानंद जी ने क्या कहा वहां से लेकर आएंगे, कौटिल्य ने क्या कहा वहां से लेकर आएंगे, मे बी एरिस्टोटल ने क्या कहा वहां से लेकर आएंगे। सो ऐसे कई सारे फिलोसोफर्स हो सकते हैं। आपके सिलेबस को गौर से देखेंगे, पेपर 4 के सिलेबस को, तो वहां पर इन फिलोसोफर्स का नाम लिखा गया है। सो जब तक आप इस कनेक्टिविटी के साथ आप नहीं पढ़ेंगे, आपको इनकम्प्लीट नजर आएगा। क्लियर है। अब मैं सिलेबस में आगे बढ़ता हूं और आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी के बारे में ये बातचीत हम कर चुके हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पूरा डिटेल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, देन नेशनल गवर्नमेंट पढ़ना है, देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंशियल अप टू लोकल लेवल्स, तो पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अभी मैं पॉलिटी पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, बट ऑब्वियसली दिस कंप्लीट टॉपिक इज कनेक्टेड विथ योर गवर्नेंस ऑल्सो, बिकॉज पॉलिटी के बिना गवर्नेंस इनकम्प्लीट है, बिकॉज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बाद आपका गवर्नेंस आता है। सो नाउ अगेन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना आपको, गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रुप गवर्नेंस का पार्ट है, एसोसिएशंस एंड रोल इन द पॉलिटी, सैलेंट फीचर्स, ये तो खैर पॉलिटी का पार्ट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये गवर्नेंस का भी पार्ट है, जस्टिस का भी पार्ट है, एट द सेम टाइम दिस बिलोंग्स टू एथिक्स ऑल्सो। तो ये सब आपस में वेल कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। नाउ जस्टिस, जब जस्टिस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जस्टिस वाला सेक्शन हो सकता है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, राइट। अब इंडस्ट्री शब्द बोल तो दिया है, ठीक है। अब यहां देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। रोल ऑफ एनजीओज, अब जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, सो पॉलिटी में व्हाट आर दी रोल्स ऑफ एनजीओज, ओके, एनजीओज प्लस सिविल सोसाइटी की हम बात करें, प्लस प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, तो ये सभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स नेगेटिवली भी काम करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या देखते हैं कि 1991 में इसके बाद आप देखोगे स्टेट क्या हो गया, स्टेट पीछे हट गया और जो स्पेस खाली हुआ वहां पर एनजीओज आ गए काम करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको गवर्नेंस में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब 91 में क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। अब आप इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आप न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से पढ़ते हैं। सो इन दोनों को मिक्स करके जब आप देखेंगे, सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ 1991 कि हुआ क्या और गवर्नमेंट को पीछे क्यों हटना पड़ा।
गवर्नमेंट को बैक में क्यों आना पड़ा? रोल बैक स्टेट एक टॉपिक आप पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वहां पर इसलिए अब आप देखोगे कि अब यहां पर प्राइवेट कंपनीज भी आ गई। अब हमें प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादा चाहिए 91 के बाद, क्योंकि एलपीजी काम करना शुरू कर चुका है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब यहां से आप देखेंगे रोल ऑफ एनजीओज। सो क्या स्टेट खत्म हो गया? क्या स्टेट का एंड हो रहा है? या स्टेट और ज़्यादा पावरफुल हो गया और अब वो ज़्यादा क्वालिटी काम करने लगा, क्वांटिटी वाला काम एनजीओज को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। इधर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज को, एमएनसीज को हमने दे दिया, या सिविल सोसाइटी को हमने दे दिया। अब इनके थ्रू जब हम काम करते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहाँ से आ रहे हैं? ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से आ रहे हैं। और आप गवर्नेंस में एनपीएम नहीं समझते हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अधूरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इस सब्जेक्ट को बेटर डील कोई कर पाता है जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है। बिकॉज आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं तो गवर्नेंस को नहीं समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस पर बात करूंगा, सो आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आई मीन एनजीओ का रोल क्या है? अब एनजीओज का रोल कहाँ से शुरू हुआ? रोल बैक स्टेट क्या है? क्या एनजीओज जो गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म चाहिए था 91 के बाद, वो रिफॉर्म्स हुए या नहीं? तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स पहले पढ़ें फिर हम पढ़ें। बेशक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स, अब ये टॉपिक जस्टिस में आप पढ़ रहे हैं और आप इसे आइसोलेट करके पढ़ते हैं, जबकि बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना है। बिकॉज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? गवर्नेंस। डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 4। डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं आप एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में। सो डेवलपमेंट एक कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पर इन्वॉल्व है। और ये डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडियन पॉलिटी, क्योंकि इन्हें ही करना है। उनका अप्रोच कैसा है? वो डेवलपमेंट के लिए अब क्या नीति आयोग है ना, अब तो 5 ईयर प्लान नहीं है, तो फिर वो डेवलपमेंट आएगा कैसे? अब ये डेवलपमेंट पर जब बात होनी है तो हम देश में स्टैटिस्टिक्स पर भी बात करेंगे, बिग डेटा पर भी बात करेंगे। तो बिग डेटा का आप रेफरेंस यहाँ पर लेते हो तो डेवलपमेंट में अटैच होगा कि डेवलपमेंट होना कैसे। और डेवलपमेंट अकेले अब गवर्नमेंट के बस का नहीं है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट फेलियर है, मैं ये बता रहा हूं कि अभी जरूरत है, वी रिक्वायर अदर्स हेल्प ऑल्सो, लाइक देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज ऑल्सो। ओके, अब बिना एनजीओ के पार्टिसिपेशन के हो नहीं सकता, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन चाहिए। और यहीं पर आकर फिर आप क्या मानते हो कि पार्टिसिपेशन की जब बात आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। यहीं पर आकर आप फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया नारा था उस वक्त का, फिर बाद में इस स्लोगन को थोड़ा हमने चेंज किया और हमने थोड़ा सा बदल दिया इसे, और अब ये सबका साथ सबका विकास हो गया। सो यही तो है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यही है, राइट। तो इन सब चीज़ों को आप अखबार में देखते हैं। फिर आप देखोगे वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, अभी भी ये पेपर जस्टिस में ही हम बातचीत कर रहे हैं। सो वल्नरेबल सेक्शंस, जो कमज़ोर तबका है समाज का, उनके लिए बात हो रही है, राइट। उनकी स्कीम्स इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मैकेनिज्म्स कैसे हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, बॉडी कौन है। जैसे मान लो हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये सब क्या है? ये सब भी तो वही है ना जो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जस्टिस मीन्स उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। यहीं पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आ जाएगा, और आप उसे पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, आप उसे पेपर 4 में भी पढ़ सकते हैं। गॉट इट? इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। अब ये आ गया तो ये डेवलपमेंट से ही तो कनेक्टेड है। जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, या यूएनडीपी के एचडीआई की बात करते हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसमें दो चीज़ चाहिए आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये उन्हीं बातों को तो यहाँ सामने लेकर आए। और इसमें रोल किसका है? ब्यूरोक्रेसी का। दैट मीन्स रोल ऑफ गवर्नेंस, क्लियर है। और वो हमें कैसे करना है? विथ एम्पैथी और सिंपैथी, तो पेपर 4 आ गया। विथ एथिकल वैल्यूज, पेपर 4 आ गया। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये इश्यूज क्यों आपको पढ़ाए जा रहे हैं? क्यों नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है कि हमें अमीरों के बारे में पढ़ना है? बिकॉज दे डोंट रिक्वायर यू डायरेक्टली, उनको जरूरत नहीं है।
एक्चुअल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत ज्यादा किसको है? वल्नरेबल पीपल को है, ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट्स को आपकी जरूरत है। बाकी लोग वेल टू डू हैं, उनके पास कुछ ना कुछ है, वो मैनेज कर सकते हैं। गरीब रिक्शा वाला बारिश होती है तो उसे सवारी नहीं मिलती, उसके पास खाने पीने के लिए 50 रुपए भी नहीं होते। सो गवर्नमेंट क्या करती है? उसके लिए कोई सेंटर खोल कर देती है जहां पर वो 5 to 10 रुपीज में भरपेट भोजन कर सके। बिकॉज हमारे एफसीआई के गोडाउन में ढेर सारा राइस रखा हुआ है, ढेर सारा चावल रखा हुआ है। वो चावल किस दिन काम आएगा? क्या उस भूखे आदमी का पेट नहीं भर सकती सरकार? क्योंकि हमारे देश में ये कंडीशंस हैं और हमें इसलिए आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वेलफेयर स्टेट, हम चेंज नहीं कर सकते उसे। सोशलिस्ट जब आप पढ़ते हो, सोशलिज्म आप पढ़ते हो प्रियम्बल में, तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर, इंडियन पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसे आप अमेंड करके हटा नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यहीं पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपका हिस्सा गरीबों को दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये सोसाइटी का पार्ट है, इसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और यहीं से फिर बात आती है कि हम सब भी उनके डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट सबका होगा, है ना, सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है वो इसी बेस पर आप इसको देख सकते हैं। नाउ गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। अब ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं और आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो काम पूरा नहीं होगा। जैसे मन में आपने सोच लिया कि मैं डोनेट कर रहा हूं और सभी को बता भी दूं, तो जो डोनेशन लेने वाला है उसको शायद थोड़ी शर्म आएगी कि मुझे दे भी रहा है और ढिंडोरा भी पीट रहा है। लेकिन अक्सर हमारी आदत यही होती है। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब दोनों तरफ है। अब गवर्नेंस में जब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, सो सिस्टम में, आई मीन गवर्नमेंट की मशीनरी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन जब पेपर 4 में हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो दिल में, दिमाग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मशीनरी में तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां पर इसीलिए एथिक्स बोला कि जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तब आप क्या करते हैं, दैट इज योर एथिक्स। तो ये ट्रांसपेरेंसी है या नहीं? बिल्कुल है, ये भी ट्रांसपेरेंसी है। बिकॉज जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर आप कोई नहीं देख रहा है और फिर कुछ करना है और वो क्या करते हैं, दैट विल डिसाइड योर एथिकल बिहेवियर। इट मीन्स क्या हुआ कि आप खुद के लिए कितने ट्रांसपेरेंट हैं, इस चीज से डिसाइड होगा कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मैनेज हो रही। क्लियर है? और वही ट्रांसपेरेंसी आप कहां देखते हैं? पेपर 2 में देखते हैं कि मशीनरी में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। सो विद द हेल्प ऑफ आरटीआई, ओके, विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, यू कैन मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, राइट? नाउ अकाउंटेबिलिटी, किसने किया काम, कैसे डिसाइड होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ड्यूटी एलोकेशन से। क्लियर है? आप पढ़ते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी है। फिर ई गवर्नेंस जिसकी बात मैं कर रहा था, उसके एप्लीकेशंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सक्सेस पढ़ना है, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, 3-4 टॉपिक्स एक साथ दे दिया ई गवर्नेंस। बिकॉज ये बेस है आपके ट्रांसपेरेंट बिहेवियर का। आपका मान लो एथिक्स नहीं भी अलाउ करता है, आप एथिकल नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस because already e-governance has been implemented in the system। अब आपकी मजबूरी है, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनली आपको मेल आ गया कि आपको 1 जुलाई को आपको काम मिला है 3:10 में। आपने इनबॉक्स कब खोला? 3 दिन बाद, वो भी दिखता है उसमें। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम जनरेटेड डेटा, somebody can check your work, somebody can supervise your work। अब यहां पर क्या हुआ? मैन पावर कम लगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। अब फाइलें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सब कुछ वहां पर हो रहा है। नाउ सिटीजन चार्टर, अब ये आप देखोगे ये कॉमन टॉपिक है, ये पेपर 2 में भी पूछा है और पेपर 4 में भी पूछा है, दोनों जगह पर आ रहा है सिटीजन चार्टर। क्लियर है? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इट्स अ वे टू मेक अकाउंटेबल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर है? लाइक रेलवे डिफाइन करती है कि जब आप एसी बोगी का किराया देते हैं तो आपको साथ में क्या क्या मिलेगा। ये क्या हुआ? दिस इज सिटीजन चार्टर। ओके, स्टार्टेड इन 1991 इन ब्रिटेन एंड आफ्टर दैट इन 1996 वी हैव adopted in the conference of prime minister and all the CMs of states। So in 1997 exactly we started with citizen charter। So it is a charter which is announced for the citizen। सो नागरिकों के लिए घोषणा पत्र ऐसा कहा जा सकता है, हिंदी में नागरिक घोषणा पत्र इसको कहते हैं दोस्तों।
सो नागरिक घोषणा पत्र या सिटीजन चार्टर में गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो डिफाइन होती हैं कि आपको किस रेट पर कोई सामान मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिला देन व्हाट। बस एक ही ड्रॉबैक है कि आप इसे कोर्ट से जस्टिसेबल नहीं करा सकते, एनफोर्सेबल नहीं है। आई मीन कानून में कंपल्शन नहीं किया गया है, फिलहाल ये इसका ड्रॉबैक है। बहुत सारी बातें बात करेंगे इसमें। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। सो इंस्टीट्यूशन क्या है हमारे पास? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और भी हम बातचीत करेंगे। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, अगेन ब्यूरोक्रेट के बारे में बात हो रही है। सो अब डेमोक्रेसी आप पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में ही पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, और फिर बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट या बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंटल मशीनरी पढ़ रहे हैं। इसी में आप देखोगे कि मैंने पेपर 4 का भी सिलेबस यहाँ पर ऐड कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि अभी जो बातें मैं कह रहा था कि किस तरह से वैल्यू अटैच्ड हैं और आप कैसे सीखते हैं चीज़ों से। आप ग्रेट लीडर से सीखते हैं, रिफॉर्मर से सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से सीखते हैं। एंड रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। दैट मीन्स इन सभी जगह से आप वैल्यू कैसे शामिल करते हैं अपने बिहेवियर में, कैसे वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, इस बारे में इसमें बताया गया है। और इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको या तो आप बचपन से चीज़ों को समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है, देन इट्स ओके, और जब नहीं समझ में आता है तब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको एथिक्स के बारे में पता लग जाए। सो यूपीएससी ने सोचा कि आपको क्यों ना सिलेबस में पढ़ा दिया जाए, और सो दैट कुछ तो एथिकल वैल्यूज़ आपके अंदर आ जाए, यही पर्पज़ है। और यहाँ से आप देख पाते हैं एटीट्यूड के बारे में आपको पढ़ना है, आपके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड काम कैसे करता है, राइट। देन एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। अब ये कहाँ से आएगा? आपका प्रियम्बल से आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि साथ छूट नहीं रहा है ना। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्रियम्बल एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्विसेज। इंटीग्रिटी, आप देखेंगे प्रियम्बल के लास्ट में इंटीग्रिटी को जोड़ा है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी की जब हम बात करते हैं। सो वो इंटीग्रिटी यहाँ पर भी चाहिए। इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल कैपेसिटी, इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ एज अ सिटीजन, राइट। तो हर एंगल से इंटीग्रिटी चाहिए, आपके थॉट्स में इंटीग्रिटी चाहिए, आपके बिहेवियर में इंटीग्रिटी चाहिए, पब्लिक के बीच में जाते हैं तब भी इंटीग्रिटी की बात होगी, और देश के लिए जब आप काम करते हैं तब भी इंटीग्रिटी की बात होगी। इम्पार्शियल बने रहना है, नॉन पार्टीशनशिप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, राइट। जब रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है। सो ये कनेक्शन यहां पर भी दिख रहा है। देन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी सिंपैथी दोनों की बात होगी। व्हाट इज एम्पैथी एंड व्हाट इज सिंपैथी, क्लियर है, इसके बारे में भी बातचीत होगी। सो छोटे जैसे एग्जाम्पल हैं कि जब हम कहते हैं कि जब हमारे जवान शहीद होते हैं, हम उनके घर वालों को मुआवजा देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, कई बार ऐसे बड़ी वैल्यूज़ भी दे दी जाती है। क्या पैसा सब कुछ हो सकता है? जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है ये तो वही जानते हैं। येस, इट्स अ गुड थिंग कि हम उनके साथ खड़े हैं, कि जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो घर वालों के साथ हम खड़े होते हैं। दिस इज़ योर सिंपैथी। आप कहते हैं भाई साहब हमें भी सहानुभूति है ना, उसकी हिंदी सहानुभूति है कि हम आपके साथ हैं। फिर आप देखते हैं ये एम्पैथी है, ये सिंपैथी है। और एम्पैथी क्या है कि जब आप देखेंगे कि उस घर में जब दुख की घटना घटी है तो कोई उनका बहुत करीबी व्यक्ति, यार दोस्त, लास्ट तक वो बने रहेगा, बिना किसी शर्त के वो बैठा होगा उनके साथ। और जब आप बोलेंगे कि भाई साहब आपकी भी ड्यूटी है, अब आप जाओ अपना काम संभालो, हम सब ठीक हैं, तो वो जो व्यक्ति था आपका फ्रेंड, वो आपके एम्पैथी वाला है, क्लियर है। मतलब वो आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है कि आपको ज़रूरत है, इसलिए वो आपके साथ खड़ा है विदाउट एनी कंडीशन लेस होकर वो खड़ा है। आ रहा है समझ में? तो उस परिवार को, जो शहीद का परिवार है, अब उनके बच्चों को एडमिशन लेना है। अब आपने तो दे दिया, 10 लाख का चेक दे दिया आपने, 1 करोड़ का चेक दे दिया। अब जब बात हुई, बच्चा छोटा था, जब बड़ा हुआ
तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके फादर होते तो वो उसको सपोर्ट करते, ऐसा तो हम मान सकते हैं। तो क्या ये नहीं पॉसिबल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर इस बात के लिए खुद से अवेयर हों और इस बात को चेक करें कि जो भी शहीद परिवार हैं उनकी कंडीशन क्या है, हर साल उनका ऑडिट हो और हर साल उनके बारे में पूछा जाए, ईयरली कम से कम सर्वे हो जाए। ऐसा हो जाता है तो ये एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का काम करेगा, और कितनी सुंदर बात होगी, कितनी बढ़िया बात होगी ऐसा कर लिया जाए तो। सो दैट लास्ट तक एटलीस्ट वो बच्चा जब 18 से 20-21 साल का हो जाए, कॉलेज पढ़ के निकल जाए, तब तक तो कम से कम ध्यान दीजिए। उनकी बेटियों की शादी हो जाए तब तक तो ध्यान दीजिए। ये क्या हमारे गवर्नमेंट की या समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। तो मैंने एम्पैथी और सिंपैथी का एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवर्ड्स दी वीकर सेक्शन, जिसकी बात मैं कर रहा था कि हमारे मन में उनके लिए कोई दर्द है भी या नहीं। दर्द नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? कैसे आप उनके पास जाएंगे और कैसे होगा कि उसी वक्त आप उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर देंगे? क्या ज़रूरत थी उस पुलिस ऑफिसर को, लेडी पुलिस ऑफिसर को, कि मदद करने की गई एंड शी अरेंज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल? ऐसा करके क्या मिला होगा उन्हें? तो हम भी तो इंसान हैं, वो भी इंसान है, वो महिला, बुजुर्ग महिला भी इंसान है, उनके लिए काम हुआ और उनके लिए अपने अरेंजमेंट्स करके दिए, राइट? सो ये सारे कनेक्शंस आपको समझने होंगे। देन इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटीज, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। सो अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस जब कहता है, दैट मीन्स आपको ब्रॉडर वे में इसको समझने की जरूरत है। एमबीए के सिलेबस में पहले से पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पहले से पढ़ रहे हैं, फिर अचानक जीएस के पेपर 4 में 13 में ला दिया जाता है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है या नहीं, आप अपने बिहेवियर को कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं। सो अब बिहेवियर किसका? गवर्नेंस। सो पेपर 2 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। जब आप गवर्नेंस की बात करेंगे, सो बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी, एक ब्यूरोक्रेट का बिहेवियर, और उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं, ईआई है या नहीं, इसको समझने की जरूरत है। अभी हम एआई की बात करने लगे, बट हमें ईआई पहले चाहिए, बिकॉज एआई जो है वो इमोशंस को वैसे नहीं ला सकता, उसे डेटा देना पड़ेगा तब वो इमोशंस ला सकता है। तो यहाँ बिना इमोशंस के काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स, यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन सोसाइटी। और हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनके साथ तो और इमोशंस चाहिए। वीकर सेक्शंस, बारिश में जिनके घर टूट गए हैं, आप उनके लिए घर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठंड के दिनों में रैन बसेरा, भूखे हैं उनके लिए भोजन का अरेंजमेंट, जिनके घर गिर चुके हैं उनके लिए कहीं पर रहने की व्यवस्था, जिनके घर में डेथ हो गई है उनको आप कुछ अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। ये सब क्या है? यही तो है बेसिकली। क्या आपने जो देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे खुद को भी कंट्रोल करें और उनके इमोशंस को भी समझें, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, राइट? बात करेंगे डिटेल। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये पढ़ना पड़ेगा और इसमें बेटर होगा। मेरी सलाह है कि कुछ किताबें आप पढ़ लीजिए टाइम निकालकर, जो इस साल मेंस दे रहे हैं, दे नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम, सो यू कैन रीड सम बुक्स ऑफ लाइक ग्रेट थिंकर्स। अब्दुल कलाम साहब की किताब पढ़ सकते हैं, गांधी जी की किताब पढ़ सकते हैं, विवेकानंद जी की किताब पढ़िए। आप देखिएगा, आप ये सभी पर्सनालिटी कैसे हैं पता है, इनके साथ ब्यूटी क्या है, ये सब एक जैसे हैं। बेसिकली एक जैसे मीन्स आप एक को पढ़ लीजिए, आप देखेंगे लगभग सिमिलर लाइन पर ये लोग बात करते हैं, बिकॉज जो ठीक है वो हर जगह ठीक है, राइट? जो अच्छे हैं वो हर जगह अच्छे हैं, इसलिए इन सब की सोच एक जैसे। आप बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि अच्छा विवेकानंद जी अलग सोचते थे, अब्दुल कलाम साहब अलग सोचते हैं ना, ये सब एक जैसा ही सोचते थे। इसलिए किसी एक के बारे में भी पढ़ते हो तो आपको लगभग ये सारी पर्सनालिटी समझ में आ जाती हैं। लेकिन फिर भी टाइम है, जो फ्रेशर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आपको इन सभी जो भूतीज हैं और जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी एक एक किताब आप कम से कम पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, इस बहाने आपको थोड़ा सा सिलेबस से हट के पढ़ने का मौका भी मिलेगा और लर्निंग्स भी अच्छी हैं और आप अच्छे से लिख पाएंगे, ऑर्गेनिक लिख पाएंगे, ओरिजिनल लिख पाएंगे। और कोचिंग से रट के लिखना ज़्यादा मार्क्स नहीं ला कर देगा आपको, और रेडीमेड आंसर से कुछ होना नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अपने लेवल पर चीज़ों को डिज़ाइन और डेवलप कीजिए। और एथिक्स का ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीटली इन्होंने लिख ही दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मान लो इस पेपर को कोई पब्लिक एड वाला नहीं पढ़ाता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिफाई करेगा। क्लियर है? यहाँ पर जस्टिफिकेशन की बात है
और यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए इस टॉपिक के साथ, बिकॉज उसने बैकग्राउंड पढ़ रखा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के बिहेवियर के बारे में वो ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर सकता है। इसलिए जब भी आप पढ़ें इस टॉपिक को, आप कम से कम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टीचर से पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as the sources of ethical guidance। तो अगेन ये ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा गया, क्लियर है। सो आप देखोगे ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, वहाँ पर पब्लिक चॉइस थ्योरी है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक बैकग्राउंड आप नहीं देखोगे ये सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज इन सब का लेना देना वहीं पर है, दे ऑल आर वेल कनेक्टेड। सो कम से कम आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टीचर बैकग्राउंड से लेकर आएगा और वो टिल डेट बताएगा कि गवर्नमेंट में किस तरह के रिफॉर्म्स हुए, इन वर्ड्स की वैल्यूज़ क्या है। अकाउंटेबिलिटी आपने गवर्नेंस में भी देखा, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, एथिकल इशूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, देन फाइनली कॉरपोरेट गवर्नेंस। सत्यम घोटाला, इस पर क्वेश्चन आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आया, एथिक्स का भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुना का भी क्वेश्चन है, राइट। सो ये टॉपिक है पेपर 2 से डायरेक्ट कनेक्टेड आपको दिखता है। और देन फाइनली प्रोबिटी इन गवर्नेंस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस अगेन दैट इज एसोसिएटेड विथ इंडियन पॉलिटी। आप पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, सो आर्टिकल 308 से 323 तक बात करते हैं आप अबाउट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आप वहाँ पढ़ेंगे। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पर आप फिर से प्रियम्बल को याद करते हैं। प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, फिर से आप आरटीआई को याद करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को याद कर। आप देखेंगे टॉपिक रिपीटेड हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको एक ही बार आप गवर्नेंस में पढ़ लें तो बहुत कुछ आपका कवर हो सकता है, राइट। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स। सो वी डोंट हैव कोड्स ऑफ एथिक्स इन इंडिया। हमारे देश में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड्स ऑफ एथिक्स हमारे देश में नहीं है, बात करेंगे इनके बारे में। देन आप देख पा रहे हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट, दिस इज अवेलेबल इन इंडिया। सिटीजन चार्टर, ये मैंने बताया इसके बारे में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेल में पढ़ते हैं। वर्क कल्चर हमारा कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से निकल कर आएगा हमारे देश में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कैसे होता है, डिलेमा कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स ने क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की है, रिफॉर्म्स कमीशंस ने किस तरह की बातें की हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क कल्चर। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। सो देयर इज अ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में कौन है, गवर्नमेंट है। सो नाउ वी आर मोर फोकसिंग एंड मोर इंटरेस्टेड इन सप्लाई साइड, कि सप्लाई साइड काम कैसे कर रहा है, ओके। और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के लिए आप देखेंगे सेवोत्तम जैसा अवार्ड बनाया गया है और वो सिटीजन चार्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और सिटीजन चार्टर का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ विथ ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी कैसे इन्वॉल्व है, सर्वोत्तम अवार्ड किसको मिला और सर्विस एक्सीलेंसी किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें और काम किस तरह से होती हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, हम कैसे दे पा रहे हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आपसे डिमांड क्या कर रहा है, यही तो 1940s 50s में पब्लिक चॉइस थ्योरी ने डिमांड कर दिया था, जिसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, then utilization of public funds and challenges of corruption। so finally यहाँ पर जाकर आपका टॉपिक एंड होता है करप्शन का। so दोस्तों ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है और ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। so आई एम अ टीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड एथिक्स, इन सभी को मिलाकर हम लोग एक साथ देखते हैं और इसी तरीके से गाइड करने का मेरा अपना तरीका होता है दोस्तों। एंड मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूंगा और सिलेबस के साथ कैसे उसका मैचअप है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन डेफिनेटली आपके काम की होगी। जो इस साल मेंस दे रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत काम की है, क्योंकि ये इंटर रिलेशन भी आप समझ पाए तो आप ऑर्गेनिक आंसर लिख सकते हैं डेफिनेटली। बिकॉज पेपर 2 आइसोलेट, वैसे तो यूपीएससी में कोई भी पेपर आपको आइसोलेट करके नहीं देखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर। और सारे सिलेबस को जब एक साथ आप ऐसा देखोगे रख के तो समझ में आएगा कि ये पूरा सिलेबस एक ब्यूरोक्रेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसे सब कुछ पता होना चाहिए देश के इतिहास के बारे में, एंड ही शुड नो अबाउट ज्योग्राफी ऑल्सो, बिकॉज उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैंडल करना है तो इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। बारिश ज़्यादा आ गई, फ्लड ज़्यादा हो गया तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट संभालना है, राइट।
फिर एग्रीकल्चर में देखना है कि बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारी फसलें ख़राब हो गई, वो भी पढ़ना है। टमाटर ज़्यादा हो गए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने हैं, टमाटर कम हुए देन व्हाट, है ना। सो आप देखोगे सारा कुछ तो इकोनॉमी में पढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसे वो भी नॉलेज होना चाहिए कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, उस कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट में कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादा हो रहे हैं जिसको वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सकता है, राइट। फिर आप देखोगे उसे टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, उसे ये भी पता होना चाहिए कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, सो वहाँ से हमको इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मदद मिलेगी बारिश के बारे में बताने के लिए। तो एक गरीब किसान को समझाएगा बैठकर और पंचायत में जाकर अनाउंस करेगा कि अब आपको सैटेलाइट के थ्रू एसएमएस आए करेंगे, आई मीन जो आईएमडी डिपार्टमेंट है वो आपको बेसिकली एसएमएस किया करेगा, तो इससे आपको पता लगेगा। सो आप देखोगे वेल कनेक्टेड सारे टॉपिक्स हैं, आपस में गुथे हुए टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग आप नहीं कर सकते। ये अप्रोच लेकर आइए, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, अपने आंसर्स में लेकर आइए, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यूट्यूब के इस इनबॉक्स में आप प्लीज़ मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखें, और हमारे कॉल नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे मिलने या बातचीत करने के लिए कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस पर हम कुछ ना कुछ कोर्स लेकर आएंगे डेफिनेटली। दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए और अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि जनरल स्टडीज़ में अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।